study chapter 10. Our chapter 10 name is soil erosion and conservation. Explores first is soil, second is soil erosion, and third is soil conservation. Fill the blanks by looking at the pictures. आपको इन blanks को fill करना है pictures को देखकर. The picture shows soil, so S-O-I-L. Picture shows forest, so F-O-R-E-S-T, forest, and it shows water, W-A-T-E-R, water. Soil, forest, and water are known as resources. Soil, forest, water, ये सब क्या है? Resources and resources बोलते हैं. They provide us with many useful things. ये हमें काफ़ी useful things provide करते हैं. Let us learn about soils and how to save it. चलिए soil के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं. First is soil. Soil is the uppermost layer of the earth. जो soil है वो uppermost layer है earth की. It supports plants which provide food to all living things on this planet. ये plants support करते हैं जो हम सभी living things को provide करते हैं खाना इस planet पर. The soil is the foundation of all life on earth. मतलब जो soil है वो foundation है earth पर सभी life के लिए. Below the soil there is solid rock. Soil के नीचे solid rock भी होती है. When the earth was formed there were only water, air and hard rocks. जब earth formed हुई थी, बनी थी, तब सिर्फ पानी, हवा और hard rocks ही थे. The sun heated the rocks. Sun ने rocks को heated किया. The rain made them cold. The rain ने उसको ठंडा किया. And the wind blew over them. और wind जो है वो चलती रही. This continued for thousands of years. ये लगातार thousands of years तक चलता रहा. As a result, the rocks broke into smaller pieces. तो रिजल्ट में क्या आया, जो rocks हैं वो काफी छोटे-छोटे pieces में टूट गए, broke हो गए. These small pieces broke into still smaller pieces. और जो smaller pieces हैं ये दोबारा broke हुए और ज़्यादा smaller pieces में they were carried around by wind and water. जो हमारे आसपास wind और water के द्वारा carried किए जाते हैं. They rubbed against each other till they became tiny particles. और वो साथ में rub करते हैं एक दूसरे के against, तो ये काफी tiny particles में हो जाते हैं, change हो जाते हैं. It took millions of years for these tiny particles to change into the loose materials which are called soil. ये millions of years लेते हैं tiny material particles में change होने के लिए, जो material को lose कर देते हैं, जिसको हम soil बोलते हैं. Usefulness of soil. There are various uses of soil. काफी सारे uses होते हैं soil के. All living beings depend on soil because their basic needs are completed through soil. सभी living beings जो हैं वो soil पर depend होते हैं क्योंकि उनके जो basic needs हैं वो soil के द्वारा ही complete होती है. We get food, clothes, shelter, medicines, water, the basic needs of life system from soil. हमें food मिलता है, clothes, shelter, medicines, पानी, basic needs हमारे life system के लिए सभी हमें soil से ही मिलता है. Next, forests which grow in soil, bringing rain and supports various plants and animals activities. Forests जो soil में grow होते हैं और rain वगैरह आती है वो support करते हैं अलग अलग plants और animals activities को. Second is large deposits of metals and minerals are present in this soil. Large deposits of metals और minerals भी soil के अंदर present होते हैं. Third is microorganisms present in soil make it fertile and help in maintaining the ecosystem. Microorganisms में वो present होते हैं soil में और उसे fertile बनाते हैं और help करते हैं ecosystem को maintain करने में. Next, soil is also used for making bricks, pots and porcelain. Soil का हम use करते हैं bricks, pots और porcelain वगैरह बनाने में. Next, soil also stores water under the ground. जो soil है वो ground के नीचे पानी को store करके रखती है. This water is used for drinking and other purposes. इस पानी का हम use करते हैं पीने के लिए और दूसरे purposes के लिए. This picture shows making of bricks and pots from soil. Soil erosion, natural forces like wind, rain, and water help in soil formation. Natural forces जैसे कि wind, rain, water ये help करते हैं soil के formation में, but they can harm the soil as well. लेकिन ये soil को harm भी कर सकते हैं. At places covered by natural vegetation, there is a balance between the formation of soil and the loss of soil. उन जगहों पर जो नेचुरल और वेजिटेशन के द्वारा कवर्ड हुए हुए होते हैं वहाँ पर बैलेंस होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बीच में और लॉस ऑफ सॉइल के बीच में. ऑफन दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन और नेचुरल फोर्सेस. और ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन या फिर नेचुरल फोर्सेस के द्वारा. देन द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाती है अर्थ के सरफेस से. द कंडीशन ऑफ क्लियरिंग ऑफ और कैरिंग अवे of soil by the action of water or wind is known as soil erosion. इस कंडीशन में जब wearing off या carrying away हो जाती है soil का पानी के wind के action के द्वारा उसको हम soil erosion बोलते हैं.
रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन द लैंड लॉसेस इट्स फर्टिलिटी। सॉइल इरोजन की वजह से जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी को खो देता है। लैंड अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ टू फीड ऑल द लिविंग बीइंग्स हू ड्वेल ऑन इट। जो लैंड है वो अफेक्टेड हो जाता है सॉइल इरोजन के द्वारा, जिस वजह से हम इनफ फीड के सभी लिविंग थिंग्स के लिए इनफ फीड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फार्मर्स रीप पुअर हार्वेस्ट। फार्मर्स जो है वो उनकी काफ़ी पुअर हार्वेस्ट भी होती है। वी शुड therefore know the agents responsible for soil erosion and try to stop or control their actions। हम जानते हैं कि एजेंट से रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए, इनको स्टॉप करना चाहिए जिस वजह से सॉइल इरोजन ना बढ़े। नेक्स्ट इज एक्टिविटी। फर्स्ट इज प्लेस अ शीट ऑफ पेपर ऑन अ टेबल। आपको टेबल पर एक शीट ऑफ पेपर रखना है। रब टू रॉक्स और बिग स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर ऑन द पेपर। आपको पेपर के ऊपर दो रॉक्स या फिर दो बड़े स्टोन्स को एक साथ रब करना है। यू विल सी अ काइंड ऑफ पाउडर ऑन द पेपर। आप पेपर पर कुछ तरीके का पाउडर देखेंगे। दिस इज हाउ सॉइल इज फाउंड व्हेन रॉक्स रब अगेंस्ट ईच अदर। आप देखेंगे कैसे सॉइल बनती है जब दो रॉक्स को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाता है। रनिंग वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन। हैवी रेन्स कॉज फ्लड। हैवी रेन के कारण फ्लड्स भी हो सकता है। फ्लडेड रिवर्स एंड रनिंग वाटर रिमूव द टॉप सॉइल। फ्लडेड रिवर्स और रनिंग वाटर की वजह से टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है। रनिंग वाटर वॉश द सॉइल ऑफ द हिल टॉप। जो रनिंग वाटर है वो सॉइल ऑफ को हिल टॉप से रिमूव कर देता है, वॉश कर देता है। दिस मेक्स द स्लोप्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। और ये जो स्लोप्स होते हैं अनफिट हो जाते हैं कल्टीवेशन के बनाने के लिए। दी चंबल वैली ऑफ मध्य प्रदेश इज वन सच एग्जाम्पल। जो चंबल वैली है मध्य प्रदेश में, ये एकमात्र एग्जाम्पल है इस चीज का। इस पिक्चर शोज फॉर इरोजन बाय वाटर। A river coming down the hill carries a lot of mud with it। जो रिवर है वो कमिंग डाउन हो जाती है हिल के कैरी करते हैं लॉट ऑफ मड को अपने साथ। अपन रीचिंग द प्लेन्स द फ्लो ऑफ द रिवर स्लोज डाउन। और उस प्लेन तक पहुंचने के और प्लेन तक पहुंचने के लिए जो फ्लो होता है रिवर का स्लो डाउन हो जाता है। इट लीव्स पार्ट ऑफ द सॉइल ऑन इट्स वे। और रास्ते में ये वो सॉइल के कुछ पार्ट्स को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉइल एक्यूमुलेट्स एंड मेक द रिवर चेंज इट्स कोर्स। और पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो सॉइल है वो एक्यूमुलेट हो जाती है और रिवर चेंजेस को आकर हो जाती है, कोर्स बना देती है। यू मे हियर ऑफ द येलो रिवर इन चाइना कॉल्ड हुआंगहो। आपने येलो रिवर के बारे में सुना होगा जो चाइना में है, जिसको हम हुआंगहो बोलते हैं। इट वॉज नोन एज द सोर ऑफ चाइना बिकॉज इट चेंज इट कोर्स वेरी ऑफन। इसको हम सोर ऑफ चाइना भी बोलते हैं क्योंकि इसने चेंज कर दिया है काफ़ी जल्दी उसके कोर्स को। दिस रिजल्टेड इन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसके कारण काफ़ी लाइफ का नुकसान भी हुआ है, प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ है। इन बिहार river Kosi, which changes its course frequently, caused great havoc in 2008 when lakhs of people were affected। बिहार में जो रिवर कोसी है उसने अपनी चेंज किया कोर्स को फ्रिक्वेंटली, जिसके कारण काफी ग्रेट हैवोक हुआ 2008 में जब लैक्स ऑफ पीपल्स वगैरह अफेक्टेड भी हुए थे। नेक्स्ट वाइंड कॉजेज सॉइल इरोजन। इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट्स वेयर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ब्लो अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल इज कैरिड अवे। डेजर्ट्स में सेमी डेजर्ट में जब स्ट्रॉन्ग वाइंड्स चलती है तब लॉट ऑफ टॉप सॉइल जो होती है वो कैरिड अवे हो जाती है। दिस अफेक्ट्स द फार्मर्स बिकॉज मैन्योर टू इज ब्लोन अवे। ये फार्मर्स को इफेक्ट करती है क्योंकि जो मैन्योर है वो भी ब्लोन अवे हो जाता है। क्वाइट ऑफन द रूट्स ऑफ प्लांट्स लूज देयर सॉइल कवर एंड द प्लांट्स टाइम। और कभी कभी तो जो रूट्स होते हैं प्लांट्स की वो भी लूज हो जाती है, अपनी सॉइल को लूज कर देती हैं और प्लांट्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। शोज फॉर इरोजन कॉज्ड बाय वाइंड। Human beings also cause soil erosion। Roots of trees and plants hold the soil together। Trees के roots और plants soil को एक साथ hold करके रखते हैं। Killing of trees और deforestation is the major cause of soil erosion। Killing of trees और deforestation major कारण है soil erosion का। When trees are cut down, the soil becomes loose and is easily carried away। जब trees वगैरह काटे जाते हैं तो जो soil है वो काफी loose हो जाती है और easily carried away हो जाती है। Plugging of hilltops is yet another human factor that leads to soil erosion। hilltops को प्लग करना ये भी दूसरा ह्यूमन फैक्टर है जिस वजह से soil erosion होता है। Overgrazing by cattle also cause soil erosion। कैटल्स के द्वारा overgrazing करना इस कारण से soil erosion होता है। Picture shows deforestation causes soil erosion। नेक्स्ट इज एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट इज स्मार्ट चेक फिल द ब्लैंक्स। इन सभी फिल द ब्लैंक्स को आपको खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट सॉइल कंजर्वेशन। नेचर टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल। नेचर है मिलियंस ऑफ ईयर लेता है सॉइल को बनाने के लिए। इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इट। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको प्रोटेक्ट भी करें, उसको प्रिजर्व भी करें।
द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। जो प्रोटेक्शन होती है सॉइल की इरोजन के अगेंस्ट इसको हम सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप नेचुरल फोर्सेस लाइक माइन एंड वाटर फ्रॉम कॉजिंग सॉइल इरोजन। हम सॉइल इरोजन के लिए नेचुरल फोर्सेस को तो स्टॉप नहीं कर सकते, जैसे कि माइंड और वाटर, इनको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। हाउएवर soil can be conserved by controlling the action of these agents of erosion। लेकिन जो soil है वो हम कंजर्व कर सकते हैं इन एक्शंस जो इरोजन के एजेंट्स हैं इनके एक्शंस को कंट्रोल करने के द्वारा। दिस कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज। ये काफी नंबर ऑफ वेज के तरीके से डन हो सकते हैं। ऑन फ्लैट open grounds आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड बिफोर रेजिंग द नेक्स्ट क्रॉप। हार्वेस्टिंग के बाद और दूसरे क्रॉप को रेज करने से पहले fields lie bare। जो fields है वो bare होते हैं। दिस इज वैन द wind blows off the top soil। ये जब वो wind blows होती है तो blow off करती है top soil को to prevent the soil from getting blown away। prevent करती है soil को blown away होने से farmers grow cover crops such as grass and creepers। जो farmers होते हैं वो cover crops को grow करते हैं जैसे कि grass and creepers। The roots of plants of these cover crops hold the soil particles together and prevent them from being blown away। रूट्स होते हैं प्लांट्स की, ये कवर क्रॉप्स होती हैं जो होल्ड करते हैं सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ और प्रिवेंट करती हैं इनको ब्लोन अवे होने से। ट्रीज एंड बुशेस आर ग्रोन अलोंग द बाउंड्री ऑफ द फील्ड्स। ट्रीज और बुशेस भी ग्रोन होती हैं फील्ड के बाउंड्रीज के अलोंग। दे एक्ट एज शील्ड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वाइंड्स। ये बिल्कुल शील्ड की तरह काम करते हैं स्ट्रॉन्ग वाइंड्स के अगेंस्ट, which is shows to prevent the soil from blowing off farmers grow cover crops। Next, on hill slopes, cutting the slope into steps or terraces can reduce soil erosion। Slopes को steps और terraces में काटना करने से soil erosion reduce होता है, कम होता है। Steps slope down the flow of water। जो steps होते हैं वो slow down कर देती है water के flow को। As the water flows slow down, some soil from one step is left on the next step, reducing the amount of soil lost। और जब वाटर फ्लो होता है स्लो डाउन तो कुछ सॉइल जो है वो एक स्टेप में बच जाती है दूसरे स्टेप तक, और जिससे कि सॉइल को लॉस होने की जो अमाउंट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। दिस पिक्चर शोज कटिंग द स्लॉप इनटू स्टेप्स और टेरेस कैन रिड्यूस सॉइल इरोजन। नेक्स्ट, एफोरेस्टेशन। क्लिंग ऑफ ट्रीज और डिफोरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर सॉइल इरोजन। क्लिंग ऑफ ट्री और डिफोरेस्टेशन ये एकमात्र मेन रीजन है इरोजन का। प्लांटिंग मोर ट्रीज और डिफोरेस्टेशन इज इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना एफोरेस्टेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ इक्वली नेसेसरी टू लुक आफ्टर दिस सैपलिंग। लेकिन इतना ही ज़रूरी भी है, नेसेसरी है कि सैपलिंग्स को लगाना, उनको देखभाल करना। वाटर दैम इन ड्राई सीजन एंड फेंस दैम ऑफ सो दैट कैटल डू नॉट ईट द सैपलिंग। आपको ड्राई सीजन में उनको पानी वगैरह देना चाहिए, उनको फेंस भी करना चाहिए जिस वजह से जो कैटल है वो सैपलिंग्स को ना खा सकें। On fields near rivers during the monsoon, many rivers overflow and flood our fields। मानसून के दौरान काफी सारी रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती है और हमारे पेड़ को तबाह कर देती है, फ्लड कर देती है। टू प्रिवेंट फ्लड्स, अलोंग रिवर बैंक्स आर बिल्ट। फ्लड से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम इम्बैंकमेंट्स वगैरह बनाते हैं रिवर बैंक्स के अलोंग। दिस होल्ड्स द वाटर बिटवीन द बैंक्स एंड प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। ये वाटर को होल्ड करके रखता है बैंक्स और प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। This picture shows to prevent floods, embankments are built along river banks। Next is no more। इस वाले कंटेंट को भी आपको खुद से रीड करना है। स्पार्कल फर्स्ट, soil is the foundation of all life on the earth। जो soil है वो फाउंडेशन है अर्थ पर सभी लाइफ का। Second is the wearing down and carrying away of soil is called soil erosion। जो wearing down, carrying away होता है soil को, उसको soil erosion बोलते हैं। Erosion is caused by natural and human factors। जो erosion है वो natural factors और human factors के द्वारा होते हैं। Next, protection of soil against erosion is called soil conservation। जिसमें हम soil को erosion के against protect करते हैं, बचाते हैं, उसको हम soil conservation बोलते हैं। Last is soil is conserved by growing cover crops in plains, making terrace on hills and building embankments along river banks। हम soil को conserve कर सकते हैं cover crops को plains में grow करके, terraces पर terraces वगैरह बना करके और embankments वगैरह river banks के along बना करके। इससे हम soil को conserve कर सकते हैं। This is where the chapter is complete।